गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग? ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी पढ़ लिया था। ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी हम लोगों ने, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन हो गया था। हैड वी डिस्कस्ड रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड कल्चर, जो आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड कल्चर, फिलॉसफी एंड कल्चर। philosophy and culture. Is it visible from the back? इधर white में पीछे से दिख रहा है? अच्छा, so we had understood yesterday what is philosophy. Is there any doubt with respect to the concept of philosophy as a subject? What is philosophy? Can you tell me what is philosophy? आप थे कल? Where yesterday? Online. So what is philosophy? Please tell. It is agendas. So is philosophy agenda? So whatever you think it is not agenda. What is the meaning of agenda? Agenda किसे कहते हैं? Agenda can be some task at hand, you know, some task at hand, or something which is your objective. That can be your agenda. What do you want to pursue? So philosophy, it is not an agenda, it is a pursuit, it is a study of what? Yesterday we had discussed. So what does philosophy studies? So it studies reality. What does philosophy tend to study? Existence and reality, है ना? So philosophy किस चीज का अध्ययन करता है? Existence की और reality की। The most fundamental questions of life and existence, most fundamental questions. What is life? What is death? From where this universe came? What are the components of this universe? Who created this universe? From where it originated? What is time itself? What is space itself? All the fundamental questions of our experiences, of our existence. So philosophy, it is a subject which deals with the widest questions of life, the most essential questions of life. किस तरीके से? What is the approach of philosophy? Logical critical approach, logical rational critical approach, systematic way. It is a systematic study of all these questions. Systematic study. There is a structure in the ideas of a philosopher that is not unstructured or unorganized like any lay person or ordinary person. What differentiates between an ordinary and a philosopher? That is the structured ideas, the organization of ideas, the flow of ideas. Okay, logical flow of ideas. तो हम लोग फिलॉसफी किसे कहते हैं? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस इन अ सिस्टमैटिक, रैशनल एंड क्रिटिकल मैनर, इन अ परसिस्टेंट वे, इन अ परसिस्टेंट मैनर, इन अ डेडिकेटेड मैनर, है ना? कल हम लोगों ने ये सब बात की थी, डेडिकेटेड मैनर, परसिस्टेंट मैनर, जब तक कि उस अल्टीमेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ना जाए तब तक। So this is philosophy. Now what is culture? What is culture? Yesterday we had discussed to certain extent, we had initiated the discussion over culture. Culture क्या है? Way of life. Okay, so culture is the collection of, culture is the aggregate, culture is the aggregate of our beliefs, our faiths, our practices, our customs, and that forms our way of life. How do we live? How do we interact among ourselves? How do we interact with the institutions in the society? So that all together is part of culture. So culture is the composite of all these things. Culture is a composite, culture is an aggregate, and culture, that is also time specific or it is universal in time. Can culture be time specific or is it universal in time? Culture is universal. Does culture not change? क्या कल्चर चेंज होता है? हाँ, समय के साथ क्या कल्चर में, संस्कृति में बदलाव आता है? क्या इंडिविजुअल कल्चर में चेंज आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? इंडिविजुअल कल्चर में चेंज किसी व्यक्ति में आ सकता है, उसके रहन सहन में, उसके पहनावे में, उसकी बोली भाषा में आ सकता है, उसके धर्म में कोई व्यक्ति धर्म ही बदल ले, है ना, तो उसमें भी परिवर्तन आता है। फाइन।
Does culture changes over geography, over space? Yes. So culture, it is a variable idea. The idea of culture, it is a variable idea which varies over space and time. Is it clear? Then what is culture? It is the aggregate of all the beliefs, practices, principles, lifestyle in the society at a particular place in a given time. Okay. So culture is bound by space and time. Is it clear? समझ पा रहे हैं? अच्छा. What is civilization? सभ्यता क्या है? What is civilization then? What is civilization? सभ्यता किसे कहते हैं? हाँ. अच्छा. When a community follows the same culture for long period of time. So civilization has a relation with continuity. Civilization has relation with continuity. Something which continues over a prolonged period of time, which you inherit from the past, that is your heritage and civilization. सभ्यता फिर हम किसे कहते हैं? Something which has been continued or practiced over a prolonged period of time from centuries and millenniums, that is civilization. How you have evolved and how you have grown up till this present stage, that is civilization. ठीक है? और हेरिटेज क्या है? That you inherit from the past. Whatever you inherit from the past is your heritage, विरासत. तो ये चीजें आपको, ये शब्द सब इनका अर्थ अलग अलग होता है, दो वी यूज देम इंटरचेंजेबली, है ना? तो उसका अंतर समझना है. नाउ टेल मी, with this understanding of philosophy and culture, do you think that they are interrelated in some way? There can be some connection. Yesterday we had seen the Venn diagram, how they are interrelated, है ना? So what we had concluded, is philosophy a part of culture or culture a part of philosophy, or they are mutually exclusive? Philosophy is obviously a part of culture. Fine. What can be the interrelationship between them? If philosophy is a part of culture, so what could be the interrelation between philosophy and culture? If philosophy it is a part of culture, then what is the interrelationship between philosophy and culture? Is there any interrelationship? Positive, negative, or both of them are neutral to each other? Are they neutral to each other? No. If something is a part of something, if something is a subset of something, so essentially it would be affecting it. How does philosophy and culture affect each other in a positive sense? Do they complement each other? Do they strengthen each other? Yes. How? अच्छा, नई फिलॉसफी के साथ कल्चर में परिवर्तन आता है. वेरी गुड. कैन यू गिव सम एग्जांपल? Okay, so the ideas of Buddha, ideas of Mahavir, so brought, so they led to birth of new religions itself, है ना? The ideas of Guru Nanak that led to the creation, the birth of a new religion itself. Okay, so philosophy at times it can give birth to new religious ideas which are part of culture. Thus it can, influence culture. Fine. That we have studied under connection between philosophy and religion. Can you tell me in the wider aspect of culture, how does philosophy it has an impact on culture? Okay, so it provides the interpretation of cultural beliefs and ideas. You are saying so, ठीक है? तो जो cultural beliefs हैं, practices हैं, ideas हैं, उसका interpretation provide कराती है philosophy. So thus it helps us to understand our culture or any culture in a logical manner. Can it be said? ठीक है? Good. और क्या है? So culture it provides the justification or the basis. Sorry, philosophy it provides the justification or basis for the cultural ideas, cultural beliefs, cultural customs and practices. Why a particular society is living in a particular fashion? Why the lifestyle is so? Why do we believe in something? What is the basis of our principles? So philosophy it provides the basis or foundation for these all sort of things. Is it clear? समझ में आ रहा है? अच्छा. What else? अच्छा, enhancing the way of living means improving the way of living, reforming the way of living. Fine. So philosophy can influence culture by reforming or bettering the way of living, improving the way we live. How? How? Philosophy can provide for moral and ethical values. Okay, so philosophy it can provide new values. It can add values to the culture. It can further strengthen the existing values. Okay, it can provide new values.
It can lead to social change. It can lead to social progress. How? How does philosophy initiate social progress, cultural reforms? Has philosophy brought cultural reforms in the past? Does it have the potential to bring cultural reform? क्या philosophy culture को reform करती है? कैसे करती है? हाँ, सती की आप बात कर सकते हैं. सो कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक सती, यू नो, सती आप सभी जानते हैं क्या प्रथा थी. तो उसको जो समाप्त करने की बात हुई, टू इरेडिकेट द एविल ऑफ सती, सो देयर वाज ए कंप्लीट फिलॉसफी बिहाइंड दैट. फिलॉसफी ऑफ द आइडिया ऑफ justice, idea of equality, idea of humanity. So all these ideas, all these set of ideas, they challenge the prevailing custom of sati. अब मान लीजिए यदि सती को समाप्त करने की बात हुई तो उसके पीछे का क्या विचार था? That it is barbaric, it is inhuman, it is cruel, it is the cruelest of the cruel act committed on any individual. It is based upon unequal relationship between मेल एंड फीमेल इन दी सोसाइटी. अगर कोई मान लीजिए हस्बैंड किसी का मर गया तो सती हो जाएगी, किसी की पत्नी मरने से कोई पति सती नहीं हो जाता था या सता नहीं हो जाता था. उसको तो नहीं सताते थे, इसको सताते थे. सो द पॉइंट इज दैट कि अब ये किस चीज पर बेस्ड है? ये आइडिया किस पर बेस्ड है? इक्वालिटी के आइडिया पे. नाउ समबडी कैन आस्क यू दैट व्हाट इज इक्वालिटी. Somebody can ask you what is justice, why there should be fairness, why there should be justice. So when you are inquiring in these terms, you are getting into philosophy. Why is justice required in society? Why is equality required between male and female? So when you get into such conversation or debate, argumentation, that is the ambit of scope of philosophy. Thus, thinking upon, pondering upon, conversation upon these kind of principles or ideas, they lead to cultural reforms. इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, संस्कृति में आता है ना. कैन यू टेल मी समथिंग ऑफ सम रिसेंट ओरिजिन? इस प्रकार के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज ने प्रभावित किया है? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स इन द रिसेंट पास्ट? ट्रिपल तलाक is there. For example, in the year 2017, the Supreme Court of India in Saira Banu case, you know, so it said that the practice of talaq-e-biddat, that is triple talaq, that is unconstitutional, violative of Article 14 of the Constitution and many types of women rights. Likewise, in 2018, you had a similar kind of women empowering judgment from Supreme Court in Sabrimala temple case. You had the Indian Young Lions Association versus State of Kerala 2018, in which the Supreme Court with 4-1 majority said that the women restricting entry of women of reproductive age in Sabrimala temple, that is violative of Article 14, है ना. तो ये जो बदलाव आते हैं समाज में, संस्कृति में, वो कैसे आते हैं? प्रोग्रेसिव आइडियाज से आते हैं. सिस्टम ऑफ आइडियाज दैट इज बैक्ड बाय फिलोसफी. इज इट क्लियर? द फर्स्ट इंडिविजुअल है ना इन इंडिया. सो द आइडिया ऑफ पैसिव यूथेनेशिया, इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट बेसिक प्रीमाइस? उसके पीछे का बेसिक प्रीमाइस क्या है? लिव विथ डिग्निटी और डाई विथ डिग्निटी. गुड गुड. डिग्निफाइड डेथ है ना, डिग्निटी इवन इन डेथ. सो द बेसिक प्रिंसिपल इज you must not have only dignity while you are alive, but also in death and dying also. Why? अब मैं जैसे आपसे पूछूं, आपने कहा कि भाई पैसिव यूथेनेसिया, तो क्या वो एक प्रोग्रेसिव आइडिया है? उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? राइट टू डाई विथ dignity, dignified death. Now I ask you the question, why dignified death? Why there should be dignity in death? Now this is philosophy. Why there should be dignity in death? अच्छा, तो मरे भी dignity से. अच्छा, okay, you attempted, but still means try to have some more effective argument. Why there should be dignity in death? Tell me. Just to have respect for what? Over respect for life. Life and death are interconnected. They can't be separated from each other. If there is life, essentially there will be death. So one argument can be that life and death, they are essentially interconnected. So life के प्रति अगर डिग्निटी होगी तो डेथ के भी प्रति होनी चाहिए. ठीक है. और क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें भी रहेगा. यूथेनेसिया के
कंसेप्ट में ही डिग्निटी है, डेथ में डिग्निटी, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक है। क्यों होनी चाहिए डेथ में डिग्निटी, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो लाइफ का कंप्लीशन है, यू नो, कंप्लीशन ऑफ अ कंप्लीट लाइफ। फाइन, व्हाट एल्स? व्हाई देयर शुड बी डिग्निटी इन डेथ? So we consider that the basic philosophy is that the body dies, the soul never dies. So there is the continuity of the individual in the form of the soul, and that's why all of us, we are dignified creatures by the very basis of having consciousness. फिर आप इसके कई कारण बता सकते हैं, I am not getting into the detail of that, but yes, it can be said to be a progressive step. Why? क्योंकि पहले हम क्या मानते थे कि व्यक्ति का जीवन है जब तक है, ठीक है, उसके अधिकारों की बात है, मृत्यु में भी अधिकार है, मीन्स इट इज वन स्टेप फर्दर ऑफ बीइंग मोर civilized, that we are more sensitive towards not only those who are existing but those whose life is going to end. So that is the mark of a more civilized society. So we are getting towards more civilization, we are getting towards more humanity, you know, practicing the ideas of humanity into actual life. So we can say that it is a progressive idea. Now, is it changing the societal practices, culture, the way we treat our dying people, है ना, the terminally ill patients? आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं. So point is, in philosophy also, in the long format answers, you have the scope for including examples. Many candidates in PSC, they don't do that. They simply straightforwardly write the answers. But if it is a long format answer, try to introduce examples from where you can, the most relevant and if possible contemporary example. It will give an insight to the examiner that you don't only know the concept but you can interrelate it to the practical life as well. That will enhance the value of your answer multiple times. Do this. Don't elaborate the example, just indicate the example. For example, Sabrimala case 2018, that's it. Invest only 3 words, the quality of your answer will multiply 5 times. तो अगर आपने एक आंसर में कहीं लॉन्ग फॉर्मेट में स्कोप है, एक जगह 2 जगह भी ऐसा कर दिया, so it will improve your answer. Fine. So now we were talking about how does philosophical ideas, they have an impact upon culture. एक तरीके से सोशल रिफॉर्म इनिशिएट करके, कल्चरल रिफॉर्म्स इनिशिएट करके, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, आपने पैसिव यूथनेसिया, और क्या है दोनों के बीच में संबंध, फिलॉसफी एंड कल्चर. डज फिलॉसफी influences the way we eat, we dress, we live, we speak? क्या फिलॉसफी उन सभी चीजों को प्रभावित करती है? हम क्या खाते हैं, नहीं खाते, क्या पहनते है ना, किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी में, among various genders, among people of different communities? Is philosophy the determinant of all these relations or culture in society? है ना? In a way, yes. Can you give example? Okay, vegetarianism, non-vegetarianism, you know, the basic idea behind being a vegetarian, other than, you know, notwithstanding the geographical or the agricultural factors, not getting into that, उसके पीछे का एक philosophical idea ये होता है कि नहीं, कि अहिंसा परमो धर्म, है ना, कि violence in any form shall be abhorred, it should be, you know, avoided any form, and all life forms, they are equally respectable as human life. वेजिटेरियनिज्म के पीछे का बेसिक आइडिया क्या है, कि सभी जीव जंतु एक ही समान, जैसे कि हम मनुष्य हैं, सो एक ही समान उनकी भी लाइफ की डिग्निटी है. वी कांट किल एनीवन इन ऑर्डर टू इट. ओके, देयर कैन बी काउंटर आर्गुमेंट्स एज वेल, देयर कैन बी काउंटर आर्गुमेंट्स टू वेजिटेरियनिज्म एज वेल. सो दिस फिलोसॉफिकल थिंकिंग, इट डिटरमाइंस द वे यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आइडिया दैट विल ट्रांसलेट इनटू योर ईटिंग हैबिट्स और प्रैक्टिसेस. इज इट नॉट? द वे यू ड्रेस, फॉर एग्जांपल, in various religious systems or philosophical groups, you have the dress code for people. Do you have dress code for people? Dress code for monks, dress code for nuns, है कि नहीं है? तो वहां की संस्कृति को परिभाषित, अब मंदिर में क्या पहन के जाना है, नहीं जाना है या नहीं? अभी भी आपको देखेंगे कई ऐसे सारे आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कि टेम्पल्स अपने आगे बोर्ड लगा रहे हैं कि भाई आप प्रॉपर ड्रेस में आइए, डिसेंट ड्रेस में आइए, या कहीं पर आपको धोती पहन के आना, शॉर्ट्स पहन के नहीं आना, लिख देते हैं बाहर, है ना. तो वो आइडियाज से प्रेरित होते हैं. द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक टू पीपल. अच्छा, मेल फीमेल के बीच में कितना इंटरेक्शन होगा, ये जो कल्चरल एक बैरियर है, ये फिलोसॉफिकल आइडियाज या रिलीजियस आइडियाज से प्रेरित है कि नहीं है ना. सो हाउ मच इंटरेक्शन शैल बी देयर. सो इन डिफरेंट फिलोसफीज यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स फॉर इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारत में देखें, कई ऐसे संप्रदाय हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय की यदि हम बात करें, सो देयर इज नॉट मच इंटरेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल अलाउड.
बात आ रही है समझ में? सो दिस इज हाउ दीज आइडियाज दे हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द कल्चरल इंटरैक्शंस. इज इट क्लियर? अच्छा, और क्या है? इज देयर समथिंग एल्स? हाउ फिलॉसफी एंड कल्चर दे आर इंटर रिलेटेड? एनीथिंग एल्स? फिलॉसफी कैसे कल्चर को प्रभावित कर सकती है? क्या निगेटिवली प्रभावित कर सकती है? कैन इट हैव एन निगेटिव इंपैक्ट? बोथ कैन, यू नो, दे कैन हैव कॉन्ट्रडिक्शंस, फिलॉसफी एंड कल्चर. How they can negatively impact each other? How can culture and philosophy can have negative impact upon each other, contradict each other, resist each other? Can there be such? अच्छा, तो कुछ ऐसी भी आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो कि रिजिड सेट ऑफ आइडियाज के ऊपर बेस्ड हो. ओके, फाइन. व्हाट एल्स? सोशल बॉयकॉट. हाँ, अच्छा, मतलब सोशल एक्सक्लूजन या बाइकॉट फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस से हो सकता है. फाइन. सो यू आर सेइंग दैट फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस कैन लीड टू, यू नो, डिस्कॉर्ड, लैक ऑफ डिस्कॉर्ड इन सोसाइटी. इट कैन लीड टू डिवीजन इन सोसाइटी, एक्सक्लूजन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड वीकनिंग ऑफ कल्चर. ठीक है, बताइए. अच्छा, ये पहनना है और ये नहीं पहनना, वहां पर कंफ्लिक्ट हो सकता है. कैसे? हाँ हाँ, जो थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए इसको फर्दर, मोर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस. सी, so as you said that philosophy, it is at times, means most of the time philosophy is critical of the cultural practices, and those type of culture which are rigid, those type of culture which are fundamentalist, those type of culture which are restrictive to new ideas, they can limit the growth of philosophy. They would not allow questioning to take place. They would not allow investigation and inquiry of the established social and cultural ideas and principles. है ना? तो जो आपको रिजिड कल्चर होते हैं, जो आपको इनटॉलरेंट कल्चर होते हैं, वहां पर फिलोसफी के लिए स्कोप बहुत लिमिट हो जाता है. Are you getting the point? The fundamentalist societies where there is very rigidity to the long held ideas and practices. So there they even punish the philosophers. For example, yesterday I had discussed about the Socrates, you know, the most renowned Greek philosopher Socrates. So what fate he did meet? So he brought new ideas in Athens in Greece that, you know, unsettled the existing authorities, और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और फिर उनको जहर दिया गया. सो दो सोसाइटीज विच आर वेरी रिजिड और दोज विच आर वेरी अथॉरिटेटिव, जहां पर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज होती हैं, वो फिलॉसफी को, क्वेश्चनिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज नहीं करती, उसको रेसिस्ट करती हैं और पनिश करती. एंड सॉक्रेटिस, ही वाज नॉट द ओनली एग्जांपल. यू हैव मल्टीपल एग्जांपल ऑफ सच heroes in society, heroes and heroines in society. For example, in Italy you had Giordano Bruno in the 15th century. Italian philosopher Bruno, B-R-U-N-O, Bruno. So the long held Christian belief that universe is static, universe is limited, earth is the center of the universe, there is only one world. So Bruno, he challenged these ideas. He said that no, universe is infinite, it is not limited, universe is infinite. There is not one world, there are many worlds. There are many worlds, and he said those things on the basis of his reasoning, argumentation. So Bruno was ultimately killed. Likewise, in Iraq you had the Iranian-born philosopher thinker Mansur al-Hallaj, who gave the idea of Anal Haq. Have you heard the term Anal Haq? I am the truth, I am God. तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मनुष्य में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है. तो उसी चीज को उन्होंने कहा कि अनल हक मीन्स आई एम द ट्रुथ, माई कॉन्शियसनेस एंड द इटर्नल कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफरेंट, सो आई एम द ट्रुथ. व्हेन ही प्रोक्लेम्ड दैट, इट वाज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीमली blasphemous in Islam, and he was ultimately not only punched in face, brutally killed, decapitated, and then finally burnt and thrown in the Tigris river in Baghdad. Okay, so such societies which are intolerant to new ideas, they will be very restrictive towards philosophy, those cultures. Are you getting the point? Do you find such examples in Indian history that people, they were killed for or they were tortured for having differing set of ideas? कहाँ पर?
कबीर क्यों? तो कबीर के साथ सोशल बॉयकॉट, एक्सक्लूजन, ये सभी चीज, क्या कबीर की हत्या कर दी गई? क्या वायलेंस किया गया? कबीर के साथ वायलेंस किया गया? अच्छा ठीक है, मतलब फिजिकल वायलेंस किया गया, थ्रेटेन किया गया, ओके। सो वी डोंट फाइंड इंस्टेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस और किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इन द इंडियन हिस्ट्री वी डोंट फाइंड सच इंस्टेंस कि किसी की हत्या ही कर दी गई हो। एक से एक नास्तिक यहां पर हुए, है ना, बुद्ध से लेकर श्रमण, किसी की हत्या नहीं की गई। अच्छा, can you tell me that in the modern Indian history you have such instances where philosophers and thinkers they were killed actually? It is a recent trend. Mahatma Gandhi, Dayanand Saraswati was multiple times attacked. Dayanand Saraswati, why? He opposed idol worship. मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ना दयानंद सरस्वती, रिचुअल्स का विरोध करते थे, कर्मकांड का। गांधी की हत्या क्यों कर दी गई? उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के कारण। सो एट टाइम्स दोज कल्चर्स विच आर रिजिड टुवर्ड्स देयर आइडियाज, which are extremist, they can lead to even loss of life for philosophers, and they are very rigid towards any new philosophical idea. Is it clear? So that's how they confront with each other. What else? हाँ हाँ अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में या रिजिड कल्चर में बहुत स्लो होती है। मीन्स आवर सोसाइटी दैट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव टुवर्ड्स सच प्रोग्रेसिव आइडियाज विच चैलेंज द लॉन्ग हेल्ड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल यू सेड द आइसोलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग विमेन, फाइन, और बताइए, वेरी गुड। और कैन फिलॉसफी बी ए थ्रेट टू कल्चर? इज फिलॉसफी ऑलवेज बेनाइन, ऑलवेज गुड? सब साधु संत हुए? The philosophy, can philosophy be a threat to culture? How? Okay, so you can have such set of ideas which are again based upon logic, which are again based upon reasoning, but which have a malintent, which have a negative intent, malintent. They can impact the culture negatively. For example, ideas of or philosophies of extremism, जैसे जो चरमपंथी दर्शन है, चरमपंथी विचारधारा है, चाहे वो लेफ्ट विंग में एक्सट्रीमिज्म हो या फिर आपको अल्ट्रा राइट में एक्सट्रीमिज्म हो। लेफ्ट विंग राइट विंग समझते हैं, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आपको आइडियोलॉजिकल पोल्स हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो दोनों में जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज क्रीप कर जाते हैं, आ जाते हैं, सो दैट बिकम्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ कल्चर, दैट बिकम्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। सो फिलोसॉफिकल आइडियाज एट टाइम्स कैन बी बेस्ड अपॉन लॉजिक, can be based upon argumentation, but they in fact show differences in the society, division in the society. They misuse the philosophical tools. अब जैसे सोफिस्ट थे ग्रीक में, तो वो क्या करते थे, वो कुछ भी रेटरिक से और आर्गुमेंटेशन से प्रूव कर देते थे जो उनको सूट करता हो। तर्क से कुतर्क से कुछ भी सिद्ध कर देते थे जो सोफिस्ट थे ग्रीस में, और इसके कारण बहुत अव्यवस्था फैली वहां पर। सो लाइकवाइज व्हाट डज फिलॉसफी it has the potential to do? The tool of logic and critical reasoning can be misutilized to manipulate number of people. As you said, the Nazi ideology, or in the present times you have the extremist or the ultra conservative ideology or the far left wing extremism in India. तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, क्या उससे संस्कृति का नुकसान नहीं हुआ? क्या उससे लोगों का नुकसान नहीं हुआ? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, क्या उससे हमारा नुकसान समाज का, संस्कृति का नहीं हुआ? हुआ ना? नंबर ऑफ लाइव्स वेयर लॉस्ट, नंबर ऑफ ट्राइबल्स दे हैड टू बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द सिक्योरिटी एक्शन बाय द स्टेट। तो जो उससे हमें कल्चरल लॉस होता है, दैट इज वेयर फिलॉसफी इट बिकम्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू कल्चर, जहां पर फिलॉसफी सीधे एक थ्रेट बन जाती है कल्चर को। बात आ रही है समझ में? So philosophy with its malintention, with its misintention, it can also target the culture and weaken it in the process. क्या करेगा? उसको वीक कर देगा। Is it clear? अच्छा, हाँ बताइए। सर, अगर कोई इंसान अपने आप को फिलोसोफर क्लेम नहीं करता, डिक्लेयर नहीं करता, तब भी हम उसके आइडियाज को एक फिलोसफी के उसमें एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, द पॉइंट इज दैट कि philosophers they are not interested someone who is genuinely interested in finding the questions of life, तो उसमें प्रोक्लेमेशन या वैलिडेशन का तो कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या हम उसके आइडियाज को फिलॉसफी कह सकते हैं? उसके लिए जो हमारा डेफिनेशन है वो क्राइटेरिया है
क्या उन क्राइटेरिया पे उसके आइडियाज फिट बैठते हैं, क्या वो सिस्टमैटिक आइडियाज हैं उनके, क्या वो होल सेट ऑफ क्वेश्चंस को एड्रेस करता है, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करता है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर है देन द पर्सन इज अ फिलोसोफर, हिज आइडियाज आर अ फिलोसॉफिकल सिस्टम। बात आई समझ में? हाँ अच्छा, नाउ सी ओसो अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, यू नो, फ्रॉम मध्य प्रदेश, वो जबलपुर के पास के थे, आपको छिंदवाड़ा के थे, है ना, चंद्रमोहन जैन, देन कन्वर्टेड इनटू ओसो, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी भगवान रजनीश। सो ओसो, in my opinion, he was not a philosopher, he was a thinker. Oso was a thinker. Philosopher is a person who provides the solution to the ultimate principles, ultimate questions of life in a very organized manner, structured manner, and most of the time it should be original idea. Philosopher के जो अपने ideas होते हैं वो original ideas होते हैं. There is something he is bringing to the or she is bringing to the set of system. So Oso most of the time, you know, he accumulated a lot of knowledge by reading number of books and he interpreted and analyzed those books in his own insight and then he put it forward. तो क्या उसका negative असर पड़ा या उसका positive असर पड़ा? See, it had both. It had positive impact that it you know, challenged the superstitions of, challenged the prejudices of society. It brought out the hollowness of religions. It brought out the hollowness of religions and the religious leaders, है ना। तो ओशो से ये एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, जो रिजिडिटीज थे, ऑर्थोडॉक्सीज थे, जो इनका एक हॉलोनेस था, जो धर्मों का खोखलापन था, उसको सामने लेकर आए। निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा? व्हाट वर द निगेटिव इम्पैक्ट, यू नो? सो एट टाइम्स ही ऑल्सो मैनिपुलेटेड हिज फॉलोअर्स. At times he manipulated his followers for the sake of gaining more followers. His organization, it was involved in criminality in the United States. ऑरेगन काउंटी उन्होंने वहां परचेज किया, और क्रिमिनलिटी के आरोप लगे, जेल गए उसको, कई देशों में प्रतिबंधित हुए, एंड देयर वाज द एक्यूजेशंस ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स एंड यू नो सेक्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. सो ही मैनिपुलेटेड हिज फॉलोअर्स ऑल्सो, बोथ इम्पैक्ट, अच्छा भी और बुरा भी. ठीक है, ओके. थिंकर का मतलब होता है जो किसी विषय के ऊपर सोचता हो. सो थिंकर कैन बी अ स्कॉलर हु हैज ड्वेल्ट अपॉन, हु हैज थॉट अपॉन पर्टिकुलर इश्यूज in much depth, not necessarily dealing with the ultimate questions of life, maybe in a particular subject of inquiry. But a philosopher, his ideas are complete system. उसके पास जन्म से लेकर मरण तक का दवाई है. जैसे आप प्लेटो की बात करिए, है ना, तो प्लेटो के सिस्टम में आपको जो दुनिया है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, सबका एक्सप्लेनेशन है. एक थिंकर के पास उन सब का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए किसी एक खास चीज का उत्तर हो सकता है. अ थिंकर लैक्स ओरिजिनल आइडियाज, अ फिलोसोफर हैज मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिनल आइडियाज, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज. थिंकर के आइडियाज कहीं से डिराइव्ड हो सकते हैं, किसी के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, किसी एक ओरिजिनल आइडिया पे कमेंट्री हो सकती है, उस पर स्कॉलरशिप हो सकता है. लेकिन जो फिलोसोफर के आइडियाज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओरिजिनल, दे आर सिस्टमैटिक. इज इट क्लियर? सो दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ फिलोसोफर एंड अ थिंकर. दार्शनिक और चिंतक के बीच में यही मूल अंतर होता है. इसलिए मैं ओशो को चिंतक मानता हूं, दार्शनिक नहीं मानता, क्योंकि उनके कुछ मूल विचार अपने नहीं है, कोई ओरिजिनल आइडियाज अपने नहीं है. वो इधर उधर से कन्फ्यूशियस, लाओजू, जीसस, गीता, यू नो, इधर उधर से वो बातें लेकर, हाँ ठीक है, उनका रोल है फिलोसफी में, यू नो, ही स्प्रेडेड दोज आइडियाज, फाइन. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फिलोसफी एंड कल्चर, तो बोथ इंपैक्ट है. हाँ बोलिए. टर्बन, यस, हाँ. अब हम ये कह सकते हैं कि जो ओपन कल्चर नहीं है, जहां पर फंडामेंटलिज्म है, वो दूसरे फिलोसॉफिकल मैनिफेस्टेशंस को, एक्सप्रेशंस को रेसिस्ट करते हैं, है ना, उनको टारगेट करते हैं. अब जैसे मान लीजिए किसी का अपना ड्रेस चॉइस है, कोई टर्बन पहनता हो, कोई हिजाब पहनता हो, नॉट गोइंग इनटू दी गुड एंड बैड ऑफ दैट, मतलब अगर उस व्यक्ति का चॉइस है और वो उसके रिलीजियस आइडिया से ड्रिवन है, is it a matter of targeting the individual, being violent with the individual? You can have ideological differences, but that cannot be the ground of physically targeting an individual. Okay? तो हम ये कह सकते हैं कि those cultures which are more narrow-minded, which are more extremists, which are more fundamentalist, they are restrictive of this type of varying ideological expressions. अब जैसे टर्बन पहनना, किसी का अपना
रिलीजियस आइडियोलॉजी का एक्सप्रेशन है ना, उसके आइडियोलॉजी का एक्सप्रेशन। कोई माथे पे तिलक लगा ले, वो उसके अपने आइडियोलॉजी का एक्सप्रेशन है। अब कोई उसको लेकर टारगेट करे, है ना। सो द फंडामेंटलिस्ट कल्चर्स, ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स, रिजिड कल्चर्स, दे आर रेसिस्टिव टू दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजिकल एक्सप्रेशंस। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? अच्छा, व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है? And now, in continuity to what you said, that when cultures interact, there can be classes of philosophies. When there is interaction among cultures, then philosophies, they can collide, they can interact, and they can, collide. They can clash with each other. At times, due to interaction among cultures, intermixing of cultures, there is the feeling of insecurity. There is the feeling of इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारतीय संस्कृति और पश्चिम के संस्कृति की बात करें, इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, सो देयर इज अ परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया कि इनकी संस्कृति हम पर हावी हो जाएगी, हम इनके तरह से खाने पहनने लगेंगे, खैर पहन भी रहे हैं, बोलने चालने लगेंगे, बोल भी रहे हैं। सो पर वो असुरक्षा है कि इससे हमारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी, इससे हमारे तौर तरीके खत्म हो जाएंगे, पर्व त्यौहार वो इससे खत्म हो जाएंगे। सो देयर इज अ थ्रेट ऑफ इंटरैक्शन एमंग कल्चर ऑन आइडियाज एज दे क्लैश, है ना। ये बातें हैं। अब जो आपने कहा ये उसका एक उदाहरण है ना, कि जैसे अलग तरीके के दिखने वाले लोग क्यों क्योंकि उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उनके फिलोसॉफिकल बिलीफ्स हैं, वो अलग हो सकते हैं, है ना। फाइन। नाउ कम्युनिस्ट्स वेयर आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ टारगेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के कारण कम्युनिस्टों को बहुत जगह टारगेट किया गया। क्यों किया गया? उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के कारण। तो जब अलग अलग कल्चर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो फिलॉसफीज आपस में टकराती हैं और उससे फिर सोशल डिसऑर्डर और वायलेंस हो सकता है। व्हाट एल्स? और फिलॉसफी और कल्चर कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है? यू आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, टेल मी। जोर से बोलिए। हाँ, दे सकते हैं। कैसे? लैंग्वेज इशू, द लैंग्वेज प्रोटेस्ट, द एंटी हिंदी प्रोटेस्ट देयर, ओके। सो ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस, फाइन। पर उसमें वो फिलोसॉफिकल एलिमेंट लाना है, तब वो रेलेवेंट बनेगा, है ना। वो एक पॉलिटिकल इशू था। जो लैंग्वेज का इशू है ना, इंटरस्टेट लैंग्वेज इशू, दैट इज मोर अ पॉलिटिकल इशू rather than a philosophical issue. But if you are relating that to Dravidian philosophy, if you are able to relate that to Dravidian philosophy as an imposition of what they call Aryan culture, then that becomes a philosophical divide. So you have to be very precise enough to bring that nuance in your understanding and answer. If you are able to do that, then your answer will be much appreciated and rewarded. So establish that linkage. Establish that linkage. What else? How are philosophy? Yes. Sometimes inclining too much towards philosophy, मतलब वो एक equality में hindrance डालता है। जैसे for example exam hall में मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में मतलब exceptions are allowed, जिन्हें बुर्का पहनना है वो आ सकते हैं, but मेरे ही classmates अंदर earphone रख के exam लिखते हैं। अच्छा, वो उसके अंदर में ईयरफोन घुसा के, हाँ, तो एक disadvantage हो गया, मतलब हम लोग के लिए। हम तो नहीं डाल सकते और हमें डालना भी नहीं है। that is more so an administrative issue, you know, an issue of, हाँ उन्हें oppose करे तो हाँ। वो यही बोलेंगे this is our ideology, ये हमारा नहीं, culture है। ईयरफोन लगाना तो कोई आइडियोलॉजी नहीं। हाँ ठीक, वो पहनना किसी की आइडियोलॉजी हो सकती है, पर ईयरफोन लगाना तो कोई फिलॉसफी नहीं है ना। दैट कैन लीड टू इन लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ हियरिंग, है ना। लॉन्ग टर्म इट कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। सो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू मोर सो rather than an ideological issue. अगर आप उसको रोक सकते हैं, बॉडी स्कैनर्स लगा दीजिए, पता चल जाएगा, हटा लीजिए, है ना। All these things are there. What else? How is philosophy and culture interrelated? In a negative sense, we can say that, see, philosophies, their acceptance is very slow. You know, their acceptance, any progressive idea that is very slowly accepted in the society. As you said, the ideas with respect to the gender exclusion. Okay. हाँ. अच्छा, same, yeah. So they can be an example. They can be an example with respect to the social philosophy. Social philosophy. तो इस तरीके से हम कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहां पर कि दोनों कंफ्लिक्ट में हो। इज इट क्लियर? हाँ। तो नक्सलिज्म की हमने बात की, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उससे क्या होता है? उससे कल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इज देयर लैक ऑफ ऑर्डर इन दी सोसाइटी ड्यू टू नक्सल वायलेंस? सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज होता है, इंस्टीट्यूशंस का ब्रेकडाउन होता है, पब्लिक एक्टिविटीज डिसरप्ट होती हैं, आम जनजीवन प्रभावित होता है कि नहीं होता है? होता है। सोसाइटल इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हिंडर होता है,
होता है ना. So we can say that in this way it is impacting the democratic culture of this country. कैसे कल्चर को प्रभावित कर रहा है? लोकतांत्रिक संस्कृति को. दैट गन इज द आंसर ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस. इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? ठीक है. तो हम इस तरीके से उसको एक होलिस्टिक वे में समझेंगे. नाउ वी विल टेक इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ऑल्सो. सो यू हैव अंडरस्टूड द कनेक्शंस बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन, फिलोसफी एंड कल्चर. नाउ वी विल have we discussed the various branches of philosophy? Various branches? Okay. क्या क्या branches हैं philosophy के? Metaphysics, epistemology, ethics, logic and aesthetics. Very good. Very good that you recall the 5 branches. So we have already dealt with the nature, the definition of philosophy, the various branches, then the interrelation between religion and culture. Okay. Now we will discuss that what is the idea of philosophy in Indian context, then we will move on to the differences between Indian and Western philosophy. Is it clear? Okay. So philosophy, it is a Greek word, means it is comprised of 2 Greek words. We had seen yesterday philos and sophia. What is the notion of philosophy in Indian context? हम क्या कहते हैं उसे? philosophy को क्या कहते हैं Indian context में? philosophy दर्शन शास्त्र बोलते हैं, है ना. फिलॉसफी को हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं. अब हमें यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन शब्दों के अर्थ से ही इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का ओरिएंटेशन, उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं. तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा. हम भारत में फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, या उसके जैसी क्रिया को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र बोलते हैं. Now philosophy, it is the love for knowledge, the affection for wisdom, attachment for knowing. Their emphasis is on sophia. Emphasis is on knowledge, wisdom. किस पर emphasis है? ध्यान से सभी बात को सुनिएगा. किस पर emphasis है? knowledge पर, जानने पर emphasis है. In India we call it दर्शन शास्त्र. What is the meaning of दर्शन? शास्त्र का मतलब विषय, शास्त्र मतलब field of study, है ना. जीव विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, भूगोल शास्त्र. तो शास्त्र मतलब फील्ड ऑफ स्टडी. दर्शन का क्या मतलब है? देखना. दर्शन का मतलब होता है देखना. तो देखने में क्या कोई इंटरमीडियरी है, क्या कोई माध्यम है, या आप किसी चीज को अपने सामने साक्षात देखते हैं? किसी चीज को देख रहे हैं तो साक्षात देख रहे हैं अपने सामने, है ना. तो साक्षात जो देखने की बात है, यही आपको वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी को डिफरेंशिएट करती है. दर्शन शास्त्र का मतलब है उस अंतिम सत्य को साक्षात देखना, यानी अनुभव करना, यानी उसका बोध करना. वो दर्शन शास्त्र है. पश्चिम में वो क्या है? वो एक रैशनल एक्सरसाइज है. वेस्ट में वो एक क्रिटिकल, लॉजिकल, एक रैशनल एक्सरसाइज है अल्टीमेट रियलिटी को जानने का. इंडिया में क्या है? वो भारतीय दर्शन में दर्शन शास्त्र अंतिम सत्य को, रियलिटी को सेल्फ रियलाइज करने की प्रक्रिया है. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ दैट अल्टीमेट ट्रूथ. इट इज नॉट लिमिटेड टू नोइंग ओनली. इट इज नॉट लिमिटेड टू नोइंग ओनली. इट गोज बियॉन्ड नोइंग टू द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ दैट अल्टीमेट ट्रूथ विदाउट एनी इंटरमीडियरी. किसी चीज को साक्षात देख लेना, उसका अनुभव कर लेना, उसका बोध कर लेना, उसको ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसको ही हम दर्शन कहते हैं. और उसके विषय में तार्किक फिर अध्ययन करना, उसका व्याख्या करना, वो दर्शन शास्त्र है. बात आ रही समझ में? किसका दर्शन करना? अल्टीमेट रियलिटी. अल्टीमेट रियलिटी. इज देयर सम अल्टीमेट रियलिटी? व्हाट इज इट? टू रियलाइज इट वन सेल्फ. उसको साक्षात देखना, उसका आत्म साक्षात्कार होना ही दर्शन शास्त्र है, ही दर्शन है. सो दैट ब्रिंग्स a complete set of orientational differences in approach and attitude between Indian and Western philosophy. Western philosophy, it is an intellectual exercise of rigor, intellectual exercise of knowing, intellectual exercise of clearing your doubts. But Indian philosophy is uplifting oneself, uplifting oneself, खुद को ही uplift करना. तो knowledge केवल intellectual enjoyment का exercise नहीं है. नॉलेज का उद्देश्य है व्यक्ति को परिवर्तित करके उसका जो मूल स्वभाव है, उसका जो मूल रूप है, चेतना, कॉन्शियसनेस. द वेरी बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस व्हाई वी आर लिविंग? वी आर कॉन्शियस द मोमेंट वी आर अनकॉन्शियस, वी आर और नॉट कॉन्शियस एनी मोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी आर डेड.
इज इट क्लियर? तो उसका जो मूल स्वरूप है, मूल जो आइडेंटिटी है, उसका अनुभव कर लेना उस ज्ञान के माध्यम से, दैट इज दर्शन शास्त्र। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज नॉट ओनली लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, उसमें वो लॉजिकल एनालिसिस है, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन है। दोनों में ये आपको बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सभी को समझ आ रहा है? आपको आ रहा है? इधर समझ में आ रहा है आपको? इधर आपको सामने आ रहा है? अच्छा, सो बेस्ड ऑन दिस डिफिनिशनल डिफरेंस, ये जो परिभाषा का अंतर या जो दृष्टिकोण का अंतर है दोनों के बीच में, सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। इसके कारण दोनों में आपको मैसिव डिफरेंस आता है, हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाउ डज इट डिफरेंशिएट, यू नो? नाउ इंडियन फिलॉसफी एंड दी वेस्टर्न फिलॉसफी, एज आई टोल्ड यू, इंडियन फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र, तो ये किस तरीके का एक्सरसाइज है? सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सरसाइज है। दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ दी, किस चीज का सेल्फ रियलाइजेशन? किस चीज का सेल्फ रियलाइजेशन? अल्टीमेट ट्रूथ, सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम बीइंग। इज देयर एनी रियलिटी? ओके, what kind of reality? Is it permanent? It is impermanent, temporal? Is there something which is the supreme reality? So not only knowing about that supreme reality, but to self-realize that supreme reality without any intermediary, किसी अन्य चीज के माध्यम के बिना सीधे साक्षात उसका बोध कर लेना ही दर्शन शास्त्र है। बात आ रही समझ में? अब वो सेल्फ रियलाइजेशन इंटरनल प्रोसेस है कि एक्सटर्नल प्रोसेस है? इंटरनल प्रोसेस है, सो इट इन्वॉल्व्स कंटेम्पलेशन, इट इन्वॉल्व्स इंट्यूशन, इट इन्वॉल्व्स योर ओन इनर एक्सपीरियंसेस, है ना? अच्छा, तो इंडियन फिलॉसफी का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, नाउ वी आर डीलिंग विद द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। सो द बेसिक डिफरेंस इज द सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आई विल डिक्टेट द नोट्स, डोंट वरी, पहले ध्यान से समझ जाइए। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस टर्म में कोई डाउट है किसी को? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? अब उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया, अब उस काम को कोई आपको बताए कि आपने गलत किया है, आपको समझाए, दैट इज योर रियलाइजेशन ऑफ योर गिल्ट बाय समवन एल्स। और उसी चीज का अगर आपको खुद से बोध हो जाए, इंट्यूशन से हो जाए कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, आउट ऑफ योर कॉन्साइंस, देन दैट इज रियलाइजेशन बाय self, which is more concrete, which is more permanent, which is more transformative? Realization by others or by some means, or realization by your own self? Self realization, that is transformative. So the Indian thinkers or philosophers, they thought that only knowing the ultimate reality, it is the knowledge of ultimate reality, it will essentially lead into the transformation of individual personality. The knowledge of ultimate reality is not like any knowledge of, it is not like knowledge of any ordinary object. It is not like knowledge of any ordinary object. It essentially involves the transformation of human personality, bringing the human consciousness to the level of that supreme consciousness. इसीलिए भारतीय दर्शन में क्या कहा गया? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का मतलब सुप्रीम रियलिटी, जो उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म वेद में भी कहा गया है। तो उस सुप्रीम रियलिटी को जो जानता है, ब्रह्मविद, विद मतलब विद्वान, जो उसको जानता है, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही बन जाता है। यानी उसके कॉन्शियसनेस में, उसके बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके नॉलेज से। सो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। एक बार जब उसको उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सो कैन द पर्सन रेसिस्ट सच ट्रांसफॉर्मेशन? Can the person resist such transformation? When all your doubts are cleared, when all your, the disturbances or the troubles which are troubling your mind, that is cleared. So are you not a transformed person? Can you resist that transformation? No. So that is an essential conversion of a human's personality, individual personality, when you come to know the ultimate reality. So that self-realization is the process under Indian philosophy. Western philosophy में वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इन वेस्टर्न फिलॉसफी दैट इज अबाउट क्लैरिफाइंग द डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, है ना? फाइंडिंग आउट द आंसर्स टू द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। इज देयर एनी गॉड?
what would be the characteristic of God, and once you get the answer you are satisfied, fine. डेकार्ट ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ डाउट, उन्होंने गॉड को एस्टैब्लिश किया, आर्गुमेंट से एस्टैब्लिश किया. देयर हैव बीन आर्गुमेंट्स फॉर दी प्रूफ ऑफ गॉड, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स. और जब उसने प्रूफ करके आर्गुमेंट से अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, बात खत्म. क्या वो संत बन गया? ऐसा वेस्ट में कुछ एग्जाम्पल है कि ये जो लोग थे बहुत इनके अंदर भी मोरल परिवर्तन आया, पर वो उनका उद्देश्य नहीं था. वो उनका उद्देश्य नहीं था. उनका उद्देश्य था उस चीज के बारे में कंप्लीट आंसर फाइंड आउट करना. एंड व्हेन दे फाउंड आउट द इंटेलेक्चुअल अर्ज वाज सेटिस्फाइड. ओके, ओवर. बात आ रही है समझ में? सो इंडियन फिलॉसफी, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल. वेस्टर्न फिलॉसफी इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट, इंटेलेक्चुअल अर्ज. बात आ रही है समझ में? सो इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. ये क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है. और इंडियन फिलॉसफी क्या है? ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज. इंडियन फिलॉसफी इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू नॉलेज एंड नोइंग, इट गोज बियॉन्ड दैट, इट गोज बियॉन्ड दैट. बात आ रही है समझ में? सभी समझ पा रहे हैं ये अंतर? अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर आप बात करें कि फोकस कहां पर है इंडियन फिलॉसफी का, अब फिलॉसफी उसका फोकस ऑफ कोर्स रियलिटी पर होता है. व्हाट इज रियलिटी? इज दिस वर्ल्ड रियल? इज दिस यूनिवर्स रियल? और इज देयर एनी अदर वर्ल्ड आउटसाइड दिस वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड, ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड, विच इज मोर रियल? इसी पर फिलॉसफी का फोकस होता है. तो इंडियन फिलॉसफी का जो फोकस है वो रियलिटी के ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट्स पर है. किस एस्पेक्ट्स पर है? ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट्स पर. ट्रांसीडेंटल मतलब जो इस दुनिया से, हमारे अनुभव की दुनिया से परे हो, जैसे आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जीवन मरण का चक्र यानी संसार. संसार का क्या अर्थ होता है? संसार मीन्स द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. द लाइफ एंड डेथ, संसार उसी को बोलते हैं. तो इन चीजों पे जो कि रियलिटी का ट्रांसीडेंटल एस्पेक्ट है, इंडियन फिलॉसफी ने फोकस उन चीजों पर किया है. और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसने किस चीज पर फोकस किया? उसने रियलिटी के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर फोकस किया कि दुनिया किस चीज से बनी है. तो थेल्स ने कहा कि भाई अल्टीमेट रियलिटी पानी है. ग्रीक थिंकर, द फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर थेल्स, उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में पानी है, समुद्र और पूरी पृथ्वी पर पानी है, हर जगह पानी है, मनुष्य के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, हवा में भी पानी है. तो वाटर इज एवरीवेयर, वाटर इज गॉड. दूसरा आया, उन्होंने कहा कि फायर इज गॉड, है ना. तो उन्होंने हमारे जो एक्सपीरियंस की रियलिटी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया. उसके बाद आप देखते हैं कि डेमोक्रिटस जैसे फिलोसफर आते हैं, उन्होंने कहा कि द इंटायर रियलिटी दैट इज मेड ऑफ मैटर. मैटर का अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एटम. तो उन्होंने उस दिशा में बात की. जो हमारी एक्सपीरियंस की रियलिटी है उसके ऊपर वेस्टर्न फिलॉसफी का फोकस रहा है, और इसका फोकस ट्रांसीडेंटल रियलिटी पे रहा है, इसका एक्सपीरियंशियल रियलिटी पर रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हैं बात को सभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब चूंकि फोकस ये रहा तो इसीलिए इनका अप्रोच कैसा हो गया? जैसा आपने कहा कि अभी अगर एक्सपीरियंशियल रियलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा है तो अब इनका मेथड क्या होगा? साइंटिफिक होगा. साइंटिफिक होगा, टेस्टिंग, टेस्टिंग, साइंटिफिक, मैथमेटिकल. सो दैट्स व्हाई द अप्रोच ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी, इट वाज साइंटिफिक इन नेचर, mathematical in nature. That's why you will find that a number of philosophers, they were either scientists or mathematicians, starting from Thales. Thales theorem पढ़ा है आपने? Thales theorem मैथ में पढ़ा है ना? Thales theorem पढ़ा है. क्या बताता है वो Thales theorem? क्या बताता है? ट्रायंगल का एरिया निकालना बताता है Thales theorem. और क्या है? Pythagoras. Pythagoras was the predecessor of Plato. Pythagoras, वो सोफिस्ट थे पाइथागोरस, एंड ही हैड मच इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटोनिक आइडियाज. प्लेटो की फिलॉसफी पे बहुत प्रभाव था पाइथागोरस का. प्लेटो की फिलॉसफी में जो मैथमेटिकल कंपोनेंट है वो पाइथागोरस के ही विचारों से आता है. पाइथागोरस वाज देयर. एरिस्टोटल, ही वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ लॉजिक. जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, साइंटिस्ट. देन यू कम इफ इन द मॉडर्न टाइम्स, लेबनिज. हैव यू हर्ड द नेम लेबनिज? लेबनिज जो इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं आप, उन्होंने कैलकुलस को न्यूटन के साथ उसके सिद्धांत दिए कैलकुलस के. लेबनिज, उनकी आपको थ्योरी पढ़नी है, मोनाडोलॉजी आपके सिलेबस में है. देन यू हैव डेकार्ट.
हैव यू हर्ड द नेम रेने डेकार्ट? हु वाज ही? फ्रेंच फिलोसफर। ओके, तो क्या किया उन्होंने? मैथमेटिशियन भी थे, अच्छा उन्होंने फिलोसफी भी दी, तो उनका मैथमेटिकल जो उनके आइडियाज हैं वो आपने पढ़ा है? कार्टेशियन ज्योमेट्री नहीं पढ़ी आपने? कोई हो ही नहीं सकता जो कार्टेशियन ज्योमेट्री स्कूल में ना पढ़ा हो। कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी है ना, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, तो किसने दिया था? रेने डेकार्ट ने। तो कार्टेशियन, तो द पॉइंट इज दैट ऑल दीज मीन मोस्ट ऑफ दीज वेस्टर्न फिलोसफर्स दे वेयर mathematicians or either scientists. Their approach was scientific. They adopted a mathematical approach. They wanted mathematical precision in philosophy. How? When we come to Descartes, we will find out this. वो precision चाहते थे, वो लॉजिकल शार्पनेस चाहते थे। भारत में वो तो चाहते ही थे। इधर ध्यान दीजिए, समाधि में नहीं जाना है समाधि की अवस्था में, अभी तो क्लास शुरू हुआ है, आप अभी समाधि में चले गए एकदम जागृत रहिए, यू नो, अवेकेंड। So most of them were mathematicians or scientists. ठीक है। In Indian philosophy the approach is, कैसा अप्रोच है इंडियन फिलोसफी में? Is it scientific? Is it mathematical? Is it scientific? Is it mathematical? No, it is mixture. Really, it is spiritual. Approach is a spiritual approach, intuitive approach based upon self experience and contemplation. अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, तो आप उससे प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ करो। डेकार्ट प्रूफ मांगेंगे, डेकार्ट विल से प्रूव मी दैट यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी। यू नो, रामकृष्ण परमहंस, हैव यू हर्ड द नेम? इधर सुपरमैन, ध्यान दीजिए, रामकृष्ण परमहंस, हैव यू हर्ड द नेम? द मास्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद, यू नो। So Paramhans said that he has direct connection with the supreme being in the form of goddess Kali. Can anybody demand proof? That is based upon his notion of self realization of the ultimate reality, है ना। तो जो मिस्टिक्स होते थे, मिस्टिक्स जो हैं वो इंडियन फिलॉसफी में आपको इस स्पिरिचुअल स्ट्रीम के सबसे आपको फिगर हेड्स माने जाते हैं। मिस्टिक्स, द इंडियन मिस्टिक्स, the bhakti saints. So Indian philosophy, its approach is more spiritual in nature, though it is logical, though it is critical. I am saying more emphasis. वो more emphasis किस पर है? ऐसा नहीं कि प्लेटो के फिलॉसफी में आपको इमॉर्टलिटी की बात नहीं, गॉड की बात नहीं, emphasis की मैं बात कर रहा हूँ। Indian philosophy, its more emphasis is on the spiritual approach to knowing that reality. Now if you talk about the goal of philosophy, as I told you, Western philosophy goal is to satisfy the intellectual doubts, to satisfy the intellectual doubts. जो उनके अपने इंटेलेक्चुअल डाउट है उसको रिजॉल्व करना। इज देयर सम ट्रूथ? अब जैसे जॉन लॉक की एपिस्टेमोलॉजी आपको पढ़नी है, उसमें है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज ही क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, वैलिड नॉलेज, इनवैलिड नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज एन इंटेलेक्चुअल एफर्ट। ओके, सो ये क्या है आपको? सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट गोल इसका क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल अर्जेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स। इसका उद्देश्य क्या है इंडियन फिलॉसफी का? मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, लिबरेशन, मोक्ष, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। किस चीज से लिबरेशन? इस दुनिया से, दुख से, समस्याओं से, है ना। हाँ, बर्थ साइकिल से, है ना, दुख। अब अलग अलग उसको फिलोसॉफिकल थॉट्स में अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया गया। अब जैसे यदि आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो उसमें बताया गया कि भाई दुख किस लिए? क्योंकि हम इस जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, इस चक्र से निकलेंगे तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो केवल इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, दैट इज लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, है ना। इमॉर्टैलिटी, टू अचीव इमॉर्टैलिटी, टू बी इमॉर्टल बाय liberating oneself from this temporal life and existence, from this bodily life and existence, from this temporary life and existence। इससे मुक्त होकर इटर्नल एग्जिस्टेंस के साथ अपने कम्युनियन को, एसोसिएशन को इस्टेब्लिश कर लेना इसका गोल है। इन द प्रोसेस अपलिफ्टमेंट ऑफ द बीइंग, व्यक्ति का उत्थान, एंड इन द प्रोसेस सोसाइटल अपलिफ्टमेंट। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण और पूरी मनुष्यता का कल्याण, द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द
इंटायर सोसाइटी इन द प्रोसेस। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी लिबरेट होगा तो उसके आइडियाज से फिर सोसाइटी प्रभावित होगी, उसके भी मोरल कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, आएगा या नहीं? तो ये आपको गोल किसका था? इंडियन फिलॉसफी का था। अब जैसे आप देखिए कि यहां पर फिलोसफर हुए गौतम बुद्ध, तो उन्होंने क्या किया? केवल जानबूझकर शांत हो गए? जानबूझकर क्या हो गया? शांत हो गए, घर बैठ गए? फिर उन्होंने अपने विचार का प्रचार प्रसार किया कि और भी लोगों के जो दुख हैं वो दूर हो सके, सो दैट दी पेन ऑफ एंड द माइजरीज ऑफ पीपल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर लाइफ्स। तो केवल अपना उत्थान उद्देश्य नहीं है, यहां पर केवल अपना सेटिस्फेक्शन हो गया, बात खत्म। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मैं चला अपने घर। स्पिनोजा जो है वो शीशा घिसते थे, तो बोले मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। पर यहां क्या है? नहीं, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा मेरा तो दूर हुआ ही, मैं तुम्हारे भी दुख को दूर करूंगा, है ना। सो हियर द ऑब्जेक्टिव इज सोसाइटल अपलिफ्टमेंट। इज इट क्लियर? अच्छा, लिबरेशन, इमॉर्टैलिटी, जितने भी आपको भारतीय दर्शन है कुछ को छोड़कर सभी में इमॉर्टैलिटी की बात की गई है, चारवाक को छोड़कर। चाहे वो आपको सांख्य दर्शन हो, कल हमने देखा नास्तिक आस्तिक ये सभी बात किया था ना हमने, कल हमने बात किया है आस्तिक क्या है नास्तिक क्या है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। अच्छा नहीं किया, सो वी विल डिस्कस दैट। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, इंडियन फिलॉसफी, हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? मेन ब्रांचेज 6, you know. So Indian philosophy, that is differentiated under two heads, that is heterodox and orthodox. Heterodox and orthodox. Astic and नास्तिक. So who is an आस्तिक, who is a नास्तिक? आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है? Who is an आस्तिक? आस्तिक बिलीवर इन गॉड। आप बताइए, आप बताइए, हाँ आस्तिक कौन है? हाँ, बिलीव इन सुप्रीम सोल गॉड। अच्छा, आप बताइए इधर से, आप बताइए। बिलीवर इन गॉड, दिस साइड। ओके, सिंपली, सो यू आर रिलेटिंग दैट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और नास्तिक कौन है? जो कि ईश्वर को नहीं मानता है। इज दैट करेक्ट? तो करेक्ट क्या है? सच में मानना, तो वेद को जो मानता है, यू नो, वेद को जो मानता है। आस्तिक कौन व्यक्ति है? इस चीज को समझ लीजिए, जो कि वेद की ऑथेंटिसिटी को और अथॉरिटी को मानता है, ईश्वर को नहीं। भारतीय दर्शन में वो समझ अलग है। जो वेद की ऑथेंटिसिटी को, उसके अथॉरिटी को मानता है, वो व्यक्ति आस्तिक है। और जो वेद की ऑथेंटिसिटी और उसकी अथॉरिटी को नहीं मानता, वो व्यक्ति नास्तिक है। ऑर्थोडॉक्स कौन है? जो वेदाज की अथॉरिटी को मानता है। हेट्रोडॉक्स कौन है? जो वेदाज की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, वेद को क्रिटिसाइज करता है, वो व्यक्ति नास्तिक है। ठीक है, ये बात क्लियर? अच्छा, नाउ व्हाट वुड यू कॉल अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? एज यू सेड, इंग्लिश में उसको थीस्ट बोलते हैं, थीस्ट। हिंदी में, भारतीय दर्शन में उसको ईश्वरवादी बोलते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, उसको अनीश्वरवादी बोलते हैं। ठीक है, तो आस्तिक नास्तिक अलग चीज है, थीस्ट और एथिस्ट अलग चीज है। थीस्ट मतलब गॉड को मानने वाला व्यक्ति, और एथिस्ट मतलब गॉड को न मानने वाला व्यक्ति। इज इट क्लियर? अब ये सबको ध्यान रहेगा, है ना। तो थीस्ट और एथिस्ट में क्या अंतर है, और आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है, इस चीज को समझिएगा। नाउ सी हियर दैट द इंडियन फिलॉसफी, हाउ मेनी इंडियन फिलॉसफी, अब ये थीस्ट एथिस्ट भूल जाइए अभी यहां पर। Now focus on Astic and Nastic, heterodox and orthodox. Those who are Nastic, they are heterodox as they reject the Vedas, and those who are orthodox, they are Astic, those accept the Ved or the authority of Ved. How many school of Indian philosophy? Heterodox system और orthodox system कितने हैं? Anyone? Heterodox 3 है, very good. Can you name them? चारवाक, Jainism and Buddhism. Okay, not Jainism, Jaina philosophy, you know, and Buddha's philosophy. Jainism is a religion and Buddha's philosophy. So these are the three heterodox school of, the major heterodox school of Indian philosophy. ठीक है, ये heterodox हैं, ये वेद को नहीं मानते, ना चारवाक मानते, ना जैन बौद्ध, कोई नहीं मानता। और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो कितने हैं? मेजर 6 है। सठ दर्शन कहा गया, सठ दर्शन, सठ मतलब 6, संस्कृत में सठ मतलब 6। तो सठ दर्शन कितने हैं आपको? 6 हैं। कौन कौन से हैं? कैन यू नेम देम?
योग और सांख्य, मीमांसा, अच्छा, और न्याय। मीमांसा, न्याय, वेदांत, वेदांत और क्या है? छठा क्या है? सिक्स्थ वन, वैशेषिक। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। तो ये आपको टोटल 6 स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलॉसफीज हैं जो कि वेद को मानते हैं। ये अंतर समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब ये जो डिवीजन है, ये वेद को मानते हैं और ये वेद को नहीं मानते, तो इस पे क्या है? 6-3 का डिवीजन है। इन 9 स्कूल्स ऑफ, टोटल 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो आपको डिवीजन है वेद की अथॉरिटी को लेकर, सो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, दोज हु आर ऑर्थोडॉक्स दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी, 3 दे डिनाई और रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कमिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सो हाउ मेनी ऑफ देम दे बिलीव इन गॉड? क्या चारवाक गॉड को मानते हैं? चारवाक नहीं मानते, कंप्लीटली मटेरियलिस्ट हैं, आपको पढ़ना है आगे, चारवाक नहीं मानते। जैन दर्शन में कोई ईश्वर है? नो गॉड, है ना? सो दे बिलीव इन तीर्थंकर, देयर इज नो गॉड इन जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन में कोई ईश्वर है? बुद्ध ने कहा कि सब बेकार की बातें हैं, इसके ऊपर बात करने से कोई फायदा ही नहीं है, कितना भी बात कर लो तुम क्या प्रूव कर लोगे, कोई मतलब नहीं। बुद्ध ने कहा कि भाई जीवन में दुख है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह दे कि उसके जीवन में दुख नहीं है? हाँ, अगर कोई ऐसा कहता है तो यानी उसको मोक्ष मिल चुका है। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मानसिक, शारीरिक, कोई ना कोई तो दुख होगा, है ना? नहीं तो महंगाई का दुख होगा, ईरान इराक युद्ध का दुख होगा, यूएस और ईरान के युद्ध का, तो कोई ना कोई तो दुख होगा। सोशल मीडिया पे लाइक फॉलोवर का दुख होगा कि अरे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई जब जीवन में दुख है सभी के, तो ये उसी प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति को तीर लग गया हो, जैसे किसी व्यक्ति को एरो कहीं से लग गया हो तो चुभ रहा है। अब वो व्यक्ति उस अवस्था में है, द पर्सन इज इन अ स्टेट वेयर ही और सी हैज बीन हिट बाय एन एरो, feeling pain. What would the person do primarily? To remove the arrow from the body, or to think about that from which direction it came, what is the speed of arrow which hit me, what metal it is made of, what would be the intent of the person who hit me. वो व्यक्ति ये सोचेगा कि तीर किस दिशा से आया, किसने मारा, किस वेलोसिटी से मारा, है ना, किस चीज का बना हुआ तीर है। बुद्ध ने कहा वो मूर्ख व्यक्ति है जो ये सब बात सोचेगा, समझदार व्यक्ति उसको बाहर निकालेगा। सो ही सेड दैट ट्राई टू रिमूव द पेन और सफरिंग फ्रॉम लाइफ। और ये जो क्वेश्चंस है मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये चीजें, इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कभी भी लॉजिकल कन्वर्सेशन इसके ऊपर नहीं हो सकता। सो इन बुद्धाज फिलॉसफी ऑल्सो यू डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ गॉड। नाउ व्हाट अबाउट दीज 6? व्हाट अबाउट दीज 6? योग में ईश्वर है? योग में ईश्वर का विचार है? हाँ, अच्छा, योग में देखिए इधर हालत ये है कि योग में, वेदांत में, वैशेषिक में, न्याय में, सभी में ईश्वर। अब मीमांसा में आपको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो विभाजन हुए। इन मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी यू हैड द पूर्व मीमांसा एंड द उत्तर मीमांसा, एंड वन ऑफ देम दे बिलीव इन गॉड, अनदर वन दे डोंट बिलीव इन गॉड। तो मीमांसा में ये हाफ हाफ स्प्लिट है। उनमें से जो आधे हैं वो ईश्वर को मानते हैं, जो आधे हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो मीमांसा में स्प्लिट है, पूर्व में और उत्तर मीमांसा में। ओके, सांख्य में ईश्वर नहीं है, सांख्य में प्रकृति पुरुष है। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और 4.5, और इधर 4.5। सो इंडियन फिलॉसफी दैट इज स्प्लिट इन द बिटवीन व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इक्वल स्प्लिट। 4 school of thought they deny the existence of God, 4 school of thought they accept the existence of God, and 1 school of thought that is Mimamsa that is split over the question. बात आ रही है समझ में, है ना? So there is a very clear split in the Indian philosophy when it comes to God, the question of God. So Indian philosophy, अब ये बताइए कि क्या यहाँ पर इन लोगों ने मारकाट कर लिया आपस में? जब इतना डिफरेंस था तो क्या किया, एक दूसरे को मारकाट कर दिया एकदम से? नहीं, शास्त्रार्थ का था, आर्गुमेंटेशन, यू नो हाउ टू डिफीट द एडवर्सरी थ्रू आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंटेशन, एंड हूसोएवर वाज एबल टू प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर स्टैंड, द पर्सन वाज डिक्लेयर्ड टू बी विनर।
एंड दोज डिफीटेड दे एक्सेप्टेड द विनर एज देयर मास्टर, वो उसको अपना गुरु मान लेते थे, यही होता था ना. सो इंडियन फिलॉसफी in its true nature has been one of the most tolerant ideological systems ever in the world. फिलोसॉफिकल बेसिस पर हत्याएं ये भारत में आधुनिक प्रवृत्ति है. गांधी की हत्या, दयानंद सरस्वती के ऊपर हमला, है ना, ये जो सभी चीजें हैं, या आपने मध्यकाल में जो कबीर के ऊपर हमले की बात की या बाइकॉट की बात की, फिर भी उनको मारा नहीं गया. लोगों के पास था कई, वो थोड़ी जो है जेड प्लस सिक्योरिटी में रहते थे, एसपीजी सुरक्षा में कबीर जो थे. तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं दिखता. और इंडियन फिलॉसफी का ये स्ट्रेंथ है कि दैट इज बाय कैरेक्टर वेरी टॉलरेंट इन नेचर. दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी. यू नो देयर इज अ, अब भारत में मानते हैं कि स्पिरिचुअल है, हालत देख लीजिए क्या है. देयर इज अ डायरेक्ट स्प्लिट इन द थिंकिंग सिस्टम. इज इट क्लियर? ओके. सो इंडियन फिलॉसफी, मोस्ट ऑफ देम दे टॉक अबाउट लिबरेशन, दोज हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ सोल. अब आप इसमें देख लीजिए कि जैन धर्म में भी आपको सोल का विचार है, आत्मा का विचार है, अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते. बौद्ध दर्शन में भी है, पर अलग तरीके से परिभाषित करते. चारवाक नहीं मानते, ये सभी आत्मा मानते, ये सभी सोल को मानते हैं. ठीक है, गॉड को नहीं मानते, सोल को मानते हैं एक ना एक रूप में. तो सोल के क्वेश्चन पे क्या स्थिति है? सोल के क्वेश्चन पे ये नहीं मानते केवल ये एक महाशय जो है, बाकी सभी मानते हैं. ठीक है, तो 8-1 का डिवीजन है ऑन द क्वेश्चन ऑफ सोल. गॉड पे 4.5, वेदास पे 6.3. इज इट क्लियर एवरीवन? अब तो जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो सोल के कंसेप्ट को मानती है. अब सोल है तो उसके लिबरेशन की बात होगी. तो इंडियन फिलॉसफी इट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक इज टू टॉक अबाउट द लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल और द सोल, एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी इट इज मोर फोकस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिजायर्स, intellectual doubts, queries. Now, as we talked that it leads to the transformation of the individual, that is not limited only to knowledge, gaining knowledge. अच्छा, have you studied about the various branches of philosophy? है ना? तो Indian philosophy, its focus more is on metaphysics, epistemology. Indian philosophy का focus किस पर ज्यादा है? Metaphysics पर ज्यादा है, epistemology पर ज्यादा है और ethics पर ज्यादा है. Metaphysics पर है, epistemology पर है और ethics पर है. Whereas in the Western philosophy, there is more focus on knowing. That's why there is more emphasis on epistemology. When there is more focus on argumentation, so obviously there will be focus on which branch of philosophy? Logic. Very good. And they were more about the experiential aspects of learning. Focus here, I will dictate the notes. They were more interested in the experiential aspect of reality. हम जो experience करते हैं. So then which branch of philosophy they will have their focus upon? Aesthetics. Aesthetics. बात आ रही समझ में? तो याद नहीं करना है, सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. उनका इंफेसिस जानने पर था, इसीलिए एपिस्टेमोलॉजी. इनका इंफेसिस था रियलिटी क्या है, सुप्रीम रियलिटी क्या है, तो मेटाफिजिक्स पर अपना दिमाग लगाया इन्होंने. And as their entire exercise was based upon rational logical thinking, so they thought more about the subject of logic, more about aesthetics. Okay, so here you find epistemology, then you have the logic and aesthetics. बात आ रही है समझ में? याद नहीं करना है, आप कभी भी इन पॉइंट्स को रिकॉल कर सकते हैं इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन शास्त्र. बात आ रही है समझ में? नाउ, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ टू रीच देयर, हाउ टू रीच द अल्टीमेट रियलिटी. तो इंडिया में उसके लिए क्या क्या रास्ते बताए गए भारतीय दर्शन में? कौन कौन सा मार्ग है ज्ञान प्राप्ति का, सत्य तक पहुंचने का कौन कौन सा मार्ग बताया गया भारतीय दर्शन में? कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है. 3 रास्ता बताया गया, कर्म, ज्ञान और भक्ति. 3 मार्ग बताए गए कि भाई आप कर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग. नॉट द केजीबी, द रशियन स्पाई एजेंसी. कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एंड भक्ति मार्ग. और इन्होंने क्या बताया वेस्टर्न फिलॉसफी में? क्या रास्ता है अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने का? साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, प्रिसीजन के साथ, लॉजिक के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, सिस्टमैटिक इंक्वायरी के साथ आप वहां तक पहुंच सकते हैं. सिस्टमैटिक इंक्वायरी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उससे पहुंच सकते हैं. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मुश्किल है समझना?
तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझिए, कहां से वो चीज एमर्ज हो रही है, ठीक है। सो नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको, विल ट्राई टू नोट इट। फर्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ फिलॉसफी, नेचर ऑफ फिलॉसफी। First heading is nature of philosophy. The word philosophy is, first point, the word philosophy is made of two Greek words. The word philosophy is made of two Greek words. Philos and Sophia. The word philosophy is made of two Greek words, philos, 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 and Sophia, Sophia. philos means एरो देकर लिख लीजिए, लव और अफेक्शन, लव और अफेक्शन, और सोफिया में एरो देकर लिख लीजिए नॉलेज और विजडम, सोफिया में एरो देकर नॉलेज और विजडम, नॉलेज और विजडम। सब पॉइंट में नीचे लिखिए, सब पॉइंट का मतलब इफ यू हैव रिटन सम स्टेटमेंट देन फ्रॉम हियर सब पॉइंट, सो राइट इन दी सब पॉइंट, हेंस इट मीन्स लव फॉर नॉलेज और विजडम, हेंस इट मीन्स लव फॉर नॉलेज और विजडम, इट मीन्स लव फॉर नॉलेज और विजडम। Next point, philosophy reflects a natural and essential tendency in human beings, to know themselves, essential tendency in human beings to know themselves and the world, to know themselves and the world, know themselves and the world। सब पॉइंट में नीचे लिखिए, because of the overall tendency of humans as a psychological being, because of the overall tendency of humans as a psychological being, B-E-I-N-G, being, overall tendency of humans as a psychological being। सभी ने लिख लिया। अब ये जो पॉइंट है देखिए क्या कह रहा है, it reflects a natural and essential tendency in human beings to know themselves। Do you think that this tendency in human beings to know themselves, that is natural, or is it derived from somewhere else? अपने आप को जानने का जो हमारा स्वभाव है, संसार को जानने का जो स्वभाव है, क्या ये कहीं से आता है या हमारे अंदर ही पहले से स्वभाव में है? पहले से स्वभाव में है। So that's why it says that it is natural. The next thing it says that it is essential. It is essential. What is the meaning of essential here? Can anyone prevent himself or herself from not knowing or thinking on these ideas? Is it possible? So if something is natural, it must have to be essential. अगर कोई चीज नेचुरल है तो उसे एसेंशियल होना ही पड़ेगा। Now this is philosophy. Now if you have the natural tendency to know, then it is essential for you to know. That's why every person has some set of philosophical ideas, whether it may be complete or incomplete, clear or vague. ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि एल्डस हक्सले जो है उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज नो चॉइस बिटवीन हैविंग अ फिलॉसफी और नॉट हैविंग अ फिलॉसफी, यू मस्ट हैव अ फिलॉसफी, द ओनली चॉइस इज बिटवीन गुड और बैड फिलॉसफी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल। अब क्या अगर कोई चीज आपके स्वभाव में है तो क्या उसको आपसे हटाया जा सकता है? क्या फायर से उसकी बर्निंग टेंडेंसी को, एटीट्यूड को हटाया जा सकता है? नहीं। सो burning is essential to fire. If there is fire, it essentially must burn. Okay, so if there is human being, it must naturally and essentially think. Okay, so cultures, they may suppress the thinking
कैरेक्टरिस्टिक और टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नेचुरल टू अ पर्सन टू बी क्यूरियस एंड थिंकिंग, वही उसका मतलब एसेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिलॉसफी क्रिएट्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, philosophy creates a conceptual framework of the world. Philosophy creates a conceptual framework of the world, of our existence. Philosophy creates a conceptual framework of the world, 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 of our existence, of our existence. सब पॉइंट में नीचे लिखिए, its purpose is to awaken the individual, its purpose is to awaken the individual, its purpose is to awaken the individual to the value and meaning of life, to the value and meaning of life, to the value and meaning of life, and his her ultimate destiny, and his or her ultimate destiny, and his or her ultimate destiny, his or her ultimate destiny। ये क्या कह रहा है, फिलॉसफी का पर्पस क्या है, इंडिविजुअल को उसके लाइफ के वैल्यूज और मीनिंग्स को लेकर अवेकन करना, कि भाई तुम्हारी लाइफ का वैल्यू क्या है, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड देन लीड हिम और हर टू हिज अल्टीमेट डेस्टिनी। हम कहाँ जाना चाहते हैं आखिर, एक मनुष्य के रूप में, एक समाज के रूप में, है ना। एंड दिस इज वाई यू हैव टू स्टडी इट इन योर स्टेट PSC syllabus, that what is the meaning of your career, what is the meaning of your life, what is the meaning of public service, why you are into public service, what is the goal of public service, how you can assist welfare of other individuals, how you can bring betterment to not only your life but the community life. Is it clear? अच्छा, आगे लिखिए, it is impossible for a person to, next point, it is impossible for a person, it is impossible for a person to live without a philosophy. It is impossible for a person to live without philosophy, live without a philosophy, live without a philosophy. As Aldous Huxley said, Aldous Huxley, he was a British philosopher, Aldous Huxley, Huxley. As Aldous Huxley said, that the choice is not between, in inverted comma, as Aldous Huxley said, that the choice is not between metaphysics and non-metaphysics, that the choice is not between metaphysics and non-metaphysics, that the choice is not between metaphysics and non-metaphysics, but between a good and bad metaphysics, but between a good and bad metaphysics. Choice is not between metaphysics and non-metaphysics, but between a good and bad metaphysics. Next point, the purpose of philosophy is also to, the purpose of philosophy is also to clarify concepts. The purpose of philosophy is also to clarify, CLARIFY, clarify concepts. It is not mere speculation, MERE, it is not mere, MERE, it is not mere speculation, it is not mere speculation, MERE, mere का मतलब मात्र, केवल, it is not mere speculation but manifests in the form of, manifests in the form of action and behavior, manifests in the form of action and behavior. सब पॉइंट में नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल moral duties and their practice, moral duties and their practice as laid down in Gita, Bible, etc., as laid down in Gita, Bible, etc., are manifestation of ideas, are manifestation of ideas.
are manifestation of ideas. Next point, a philosopher is called to be a wise person. A philosopher is called to be a wise person, W-I-S-E. A philosopher is called to be a wise person, W-I-S-E. Full stop. Socrates defined a philosopher, Socrates, S-O-C-R-A-T-E-S, हिंदी में सुकरात बोलते हैं इनको, S-O-C-R-A-T-E-S. Socrates was an ancient Greek philosopher, 4th century BC. So Socrates defined a philosopher as a seeker of truth. Socrates defined a philosopher as a seeker of truth, as a seeker of truth, S-E-E-K-E-R, seeker. Seeker मतलब ढूंढने वाला, खोजने वाला, ज्ञान का खोजी ही दार्शनिक है, उन्होंने कहा. Seeker of truth. Socrates, he was the master of Plato, you know. Socrates किनके गुरु थे? प्लेटो के गुरु थे, है ना. और प्लेटो किनके गुरु थे? एरिस्टोटल के गुरु थे, you know. So these three great individuals who laid down the foundations for Western philosophy. To the extent that प्लेटो के बारे में एक मॉडर्न फिलोसफर आपको हैं J.H. मुइरहेड. तो मुइरहेड ने प्लेटो को कहा कि द इंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज अ फुटनोट टू प्लेटो. तो प्लेटो का इतना प्रभाव है. और प्लेटो के जो आइडियाज थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ हिज मास्टर सोक्रेटिस, यू नो. सो सोक्रेटिस वाज द मास्टर ऑफ प्लेटो. सब पॉइंट में लिखिए. Socrates said, S-A-I-D said, डैश देकर इन्वर्टेड कोमा में, an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. कोमा क्लोज कर दीजिए, इन्वर्टेड कोमा. So what he is essentially saying, that if there is human life, then it must involve examination of life, inquiry of life, good and bad, what is real, what is true, false, you know, what is suitable, what is unsuitable. So life must essentially involve thinking, examination, query, you know. So unexamined life is not worth living. जीने योग्य ही नहीं है. जब व्यक्ति चिंतनशील नहीं है, तो यदि जीवन में चिंतन नहीं है तो वो जीवन जीने योग्य ही नहीं है. और यही सेम कोटेशन आपको यूपीएससी ने ऐसे में पूछा था आज से 5-6 साल पहले. अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग ऐसे लिखने के लिए कहा था, है ना. तो ऐसे में आपके यहाँ भी ऐसे टॉपिक्स कोटेशंस आ सकते हैं. सो ट्राई टू पुट सम माइंड ऑन व्हाट द इंडिविजुअल इज सेइंग. ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करके 100-200 शब्द लिखने का खुद से प्रयास कीजिए. ट्राई टू मेक एफर्ट फ्रॉम योर ओन साइड सो दैट यू कैन कल्टिवेट सच स्किल्स एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. ठीक है. Next point, the goal of philosophy is wisdom. The goal of philosophy is wisdom. The goal of philosophy is wisdom. The goal of philosophy is wisdom, not mere empirical knowledge. Not mere, M-E-R-E, not mere empirical knowledge. Empirical knowledge मतलब जो हम अपने एक्सपीरियंस से और जो सेंसेस से डिराइव करते हैं उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं, जिसको हम अपने एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड. सो एम्पिरिकल नॉलेज. सब पॉइंट में लिखिए. द गोल ऑफ इंडियन फिलोसफर्स, द गोल ऑफ इंडियन फिलोसफर्स इज इमॉर्टैलिटी. द गोल ऑफ इंडियन फिलोसफर्स इज इमॉर्टैलिटी, अमरता, इमॉर्टैलिटी, IMMORTALITY, immortality, and not worldly happiness. Immortality and not worldly happiness. Worldly happiness. Next point, this search for wisdom is, this search, S-E-A-R-C-H, search मतलब खोज. This search for wisdom is a comprehensive activity. This search for wisdom is a comprehensive activity directed towards the problems of human existence. Directed towards the problems of human existence. Directed towards the problems of human existence. Next point में लिखिए.
In Western modern philosophy, in Western modern philosophy, in Western modern philosophy, कॉमा देकर लिखिए, Kant outlined the Kant, K-A-N-T, Immanuel Kant was one of the greatest figures of the modern Western philosophy. So Kant outlined the problems of philosophy. Kant outlined the problems of philosophy. डैश देकर लिखिए नंबर 1. Kant outlined the problems of philosophy. डैश देकर नंबर 1. What can I know? What can I know? मैं क्या जान सकता हूं? What can I know? नंबर 2. What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? What should I do? And the third is, what can I hope for? What can I hope for? H-O-P-E. What can I hope for? What can I do? What should I do? Second one is, what should I do? And third one is, what can I hope for? लिख लिया यहां तक? अच्छा, अब दूसरी हेडिंग दे दीजिए, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी. डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी. डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी. फर्स्ट पॉइंट, philosophy is a determined and persistent effort. Philosophy is a determined and persistent effort. Philosophy is a determined and persistent effort to understand the whole universe and to understand the whole universe and existence. To understand the whole universe and existence. Whole universe and existence in a rational and logical manner. In a rational and logical manner. In a rational and logical manner. Next point. The subject matter of philosophy. The subject matter of philosophy is all pervasive. The subject matter of philosophy is all pervasive. P-E-R V-A-S-I-V-E. All pervasive. P-E-R-S-A P-E-R-V-A-S-I-V-E. परवेजिव का क्या मतलब होता है? ऑल परवेजिव. परवेजिव का मतलब क्या होता है? परवेजन, विच इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, एंड ऑल इनकम्पैसिंग, which is the most comprehensive. So in place of all pervasive you can write all encompassing as well, all inclusive as well, है ना. अगर आपको मान लीजिए उसको समझने में या रिवीजन में दिक्कत आए, so all pervasive आप ब्रैकेट में all inclusive, all encompassing, जो आपको ठीक लगे लिख सकते हैं. ठीक है. So subject matter of philosophy is all pervasive. Thus philosophy is both an intellectual pursuit. Thus THUS. Thus philosophy is both an intellectual pursuit and a holistic approach. Philosophy is an intellectual pursuit. P-U-R-S-U-I-T. Pursuit का क्या मतलब होता है? Journey. Pursuit का मतलब journey, यात्रा, प्रक्रिया. So it is both an intellectual pursuit and a holistic approach, and a holistic approach to reality. Intellectual pursuit and a holistic approach to reality. Next point लिखिए. It is the art of thinking logically, systematically. It is the art of thinking logically, systematically and consistently. It is the art of thinking logically, systematically and consistently about the whole. W-H-O-L-E. About the whole. W-H-O-L-E. सब पॉइंट में नीचे लिखिए. It is the search for knowledge. It is the search for knowledge through rational questioning. It is the search for knowledge through rational questioning. It is the search for knowledge through rational questioning. It considers the problems of life and existence. It considers the problems of life and existence and removal of related doubts.
It considers the problems of life and existence and removal of REMOVAL and removal of related doubts. अगला लिखिए. Next point. Philosophy is not only the search for knowledge. Philosophy is not only the search of knowledge. Philosophy is not only the search of knowledge, but is a subject of improvement. But is a subject of improvement. Philosophy is not only the search for knowledge, but is a subject of improvement in oneself and the surroundings. Subject of improvement in oneself and the surroundings. Improvement in oneself and surrounding. Next point. Philosophy involves a systematic evaluation of. Philosophy involves a systematic evaluation of single and all aspects of. Involves a systematic evaluation of single and all aspects of. Single and all aspects of human existence and single and all aspects of human existence and experience. Human existence and experience. अब ये लाइन देखिए क्या कह रहा है. सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ सिंगल एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस. कैन वी हैव सिंगल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टेंस? कोई एक एस्पेक्ट भी हो सकता है. देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द रिलीजियस एस्पेक्ट, द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं ना हमारे लाइफ के, या एक ही एस्पेक्ट है. तो इनमें से किसी एक एस्पेक्ट का वाइडेस्ट पॉसिबल स्टडी भी, और इन सभी का comprehensive study. So it is the systematic evaluation of any one aspect of human experience or all aspect of human experience. ठीक है. जैसे मान लीजिए let's say that we talk about the political ideal of justice. Political ideal of justice. So that is one aspect of our existence. Freedom. Freedom. The idea of freedom. Why shall there be freedom? Why there shall be individual liberty? Why there shall be individual freedom? तो ये एक एस्पेक्ट है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसका. नाउ कंसीडरिंग द फ्रीडम ऑफ सोल, considering the freedom of soul, now it enhanced the entire scope and domain of thinking. I am talking about the freedom of individual, that is one, that can be one aspect of philosophical thinking. And if I think about the freedom of life, that life itself is free, nature itself is free. So such kind of thinking, it includes everything, multiple aspects of human existence and experience. So philosophy can deal with one, few or all aspects of human experience and existence. Is it clear? समझ में आ रहा है बात? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. थोड़ा सा है, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स. ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वन, मेटाफिजिक्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, राइट? हमने बात कर लिया है ना ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. पहला मेटाफिजिक्स, द स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी. मेटाफिजिक्स डैश देकर लिखिए, द स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी. द स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी. सब पॉइंट में लिखिए नीचे, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी, क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज अल्टीमेटली रियल और एग्जिस्टेंट, व्हाट इज रियलिटी, क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज अल्टीमेटली रियल और एग्जिस्टेंट, क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज अल्टीमेटली रियल और एग्जिस्टेंट. Second one is epistemology. Epistemology, E-P-I-S-T-E-M-O, E-P-I-S-T-E-M-O-L-O-G-Y, epistemology. The study and analysis of knowledge. The study and analysis of knowledge. The study and analysis of knowledge. सब पॉइंट में लिखिए, what is knowledge, what is knowledge, question mark. What is knowledge, how is knowledge possible, how is knowledge possible, question mark. What is correct and incorrect knowledge,
what is correct and incorrect knowledge, etc. What is correct or incorrect knowledge, etc. What is correct and incorrect knowledge, etc. The third one is ethics. Ethics. Inquiry into right and wrong. Inquiry into right and wrong in human actions and behavior. Inquiry into right and wrong of human actions and behavior. Inquiry into right and wrong of human actions and behavior. सब पॉइंट में लिखिए, what are good and bad actions. What are good and bad actions. What are good and bad actions. What is the basis of good and evil. What is the basis of good and evil. How to resolve moral dilemma. How to resolve moral dilemma. How to resolve moral dilemma. DILEMMA. How to resolve moral dilemma. The study of all these aspects. The study of all these aspects. The study of all these aspects comes under ethics. The study of all these aspects comes under ethics. Fourth one is logic. Fourth one is logic. Detailed study of the methods of correct reasoning. Detailed study of the methods of correct reasoning. सब पॉइंट में लिखिए, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ रीजनिंग. व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ रीजनिंग. एनालिसिस ऑफ वेरियस लॉजिकल स्टेप्स. एनालिसिस ऑफ वेरियस लॉजिकल स्टेप्स. एनालिसिस ऑफ वेरियस लॉजिकल स्टेप्स etc. Analysis of various logical steps etc. The fifth one is aesthetics. The fifth one is aesthetics. Aesthetics. Systematic and logical study of the idea and perception of beauty. Systematic and logical study of the idea and perception of beauty. सब पॉइंट में लिखिए, it considers questions like what is the source of beauty. Question mark. What is the source of beauty. What is beauty. What is the source of beauty. What is beauty. What are its various forms. What are its various forms and characteristics. Source of beauty question mark. What is the source of beauty question mark. What is beauty again question mark. What is beauty. What are its various forms and characteristics etc. What are its various forms and characteristics. So these are the questions that aesthetics deals with, and these are the various branches of philosophy we have discussed. So the discussion over the relationship between philosophy, religion and culture, उसके नोट सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दिए जाएंगे. So please try to revise these things when you come to the next class. And the second thing is that then in the next class we will get into discussion over Ved and Upanishad. वेद, उपनिषद एंड गीता, उसके आपको कुछ विचार पढ़ने, कुछ सिद्धांत, ब्रह्म, आत्मा, रीत, कर्मयोग, स्वधर्म, है ना, स्थित प्रज्ञ, ये सभी चीजें कल हम लोग पढ़ेंगे. सो प्लीज रिवाइज दीज थिंग्स एंड वंस वी कंक्लूड वन टॉपिक, so you have the compilation of the previous year questions with you. All of you have been given that. सभी के पास है ना, किसी के पास नहीं है, सभी के पास है. So please bring it also and try to, once the topic is completed, try to answer the previous year questions and show it to me. Okay? So the ultimate objective is to cultivate the skill of answer writing. Ultimate objective is to write good answers, effective answers. How to maximize the value of our answers. So show me on daily basis. I will,
suggest that how to improve it further and evaluate it. Okay? So once the class is over, I will be waiting for you outside. You please show me your answers and then you can leave once the topic is complete. So I will expect that from 1 or 2 classes onwards, you start bringing your answers. Okay? Is it clear? So without practice of answers, you know, the entire study and discussion, it will be of lesser value. It will be valuable only when you practice answers and bring it for evaluation on a daily basis. Is it clear? Okay. Is there any doubt with respect to today's class? Are you understanding the subject easily? Is there any problem in understanding? Okay. So please try to clarify the meaning of terms. While I say something, we discuss something. So if you have any problem, difficulty over understanding of any term, so highlight it there itself. Clarify it till you are completely clear of what is the meaning of the term. Okay? Thank you.